तो शुभ समाचारों में आज सबसे पहले बेंगलुरु की एक ब्लेड रनर की कहानी, जिनकी हंसती खेलती जिंदगी में किस्मत ने कयामत के वो पल दे दिए जिसे सोचकर भी आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन शालिनी डरी नहीं, टूटी नहीं, रुकी नहीं और आज दुनिया उन्हें सलाम कर रही है। बीमारी ने हाथ और पैर छीन लिए, फिर भी वो उड़ना चाहती है। चेहरे पर आत्मविश्वास और दिल में अपनी मंजिल को छू लेने की ख्वाहिश। जोश और जुनून की ये कहानी बेंगलुरु की रहने वाली शालिनी सरस्वती की है। तमाम मुश्किलों को पीछे छोड़ वो मैराथन जीतना चाहती है। इसके लिए वो रनिंग ब्लेड पर घंटों पसीना बहा रही हैं। I was always a very cheerful person. I've always been a very happy person. So I think DNA में है. So I think it wasn't. I mean, I'm here. I'm today where I am, but it has been a journey, of course. It was difficult initially. But I think after a point you just think that what do I want to do with my life? There's no point in you just sitting and cribbing and crying and all of that. You want to move forward. बेंगलुरु में कल मैराथन होने वाला है। इसमें हिस्सा लेने के लिए शालिनी के हौसले बुलंद हैं। अपने इसी जुनून के चलते उन्होंने एक जर्मन कंपनी से 10 लाख रुपए के लोन पर कार्बन फाइबर रनिंग ब्लेड खरीदे हैं और अब इसे पहनकर वो दिन रात पसीना बहा रही हैं। शालिनी के मैराथन जीतने के इस जुनून और जिद का हर कोई कायल है। Ultimate goal in life is to be happy. That's about it. I don't think anybody needs to have a goal other than that. So do whatever that makes me happy. So from a sports perspective, I haven't necessarily thought anything. The coach thinks we should do 2020, but I'm happy. I'm happy where I am right now, and I'm happy to just be happy. आज मैराथन जीतने की चाहत रखने वाली शालिनी कभी एक अच्छी भरतनाट्यम डांसर भी थी। 9 साल पहले शालिनी की शादी प्रशांत के साथ हुई थी। दोनों कंबोडिया की एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे। जिंदगी काफी अच्छी चल रही थी, लेकिन तभी जिंदगी में दुखों का सैलाब आ गया। एक दिन शालिनी को फीवर आया। डॉक्टरों के पास गए तो पता चला कि वो एक गंभीर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की शिकार हो गई है, जो लाखों लोगों में से किसी एक को होता है। 1 साल तक शालिनी का इलाज चला और अंत में जान बचाने के लिए उसके हाथ और पैर काटने पड़े। लेकिन इन सब के बावजूद भी शालिनी ने हिम्मत नहीं हारी और जिंदगी को फिर नए सिरे से शुरू किया। It wasn't a conscious decision. For 2 years I was in bed. बहुत मोटी हो गई थी. And I always used to do some amount of exercise, and we were trying to find someone to actually work out with. And also with prosthetics, it's important to be healthy. There's only so much weight a prosthetic can carry. So that's when we started talking, us looking for people. We couldn't find anybody. That's when we met Coach. And Coach was one of the few people who weren't, too hassled and what am I going to do with her kind of a thing. And he was more open to the idea and said, come on, we'll see what we can do. शालिनी के लिए ये सब करना आसान नहीं था, लेकिन उसने अपनी हिम्मत कभी नहीं हारी। उन्हें हर वक्त और हर मोड़ पर परिवार और दोस्तों का साथ मिला। वहीं शालिनी के पति प्रशांत का कहना है कि वो उनके जीवन की प्रेरणा है। It was not difficult firstly. She's my inspiration. So I'm the most emotional person in our relationship. She's the one who used to say, Prashant, we've hit rock bottom. You can't go deeper than this. The only way is up. So let's look at life like that. मैराथन के बाद शालिनी की नजर 2020 में होने वाले पैरालंपिक पर है, जिसके लिए वो अपने कोच के साथ जमकर मेहनत कर रही हैं। शालिनी के कोच बीपी अयप्पा भी उसके इस हौसले को सलाम करते हैं, क्योंकि शालिनी की जिद से उन्हें भी बहुत कुछ सीखने को मिला। But initially when I saw her, it was a big shock for me. It was a big challenge for me, actually. But
The main thing is there was positive energy from the other side also. When she came to me, the confidence level was really zero with her, and the worst part is she's not at all a sportsman actually. She was a lay person. Making her a sportsman was a big challenge. I took nearly 2 years to make her a sportsman. Now she is into it, so in the future you can see greater heights from me. किसी ने सच ही कहा है, मन में अगर किसी चीज को पा लेने की ठान ले तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। शालिनी की ये कहानी मिसाल है हर उस व्यक्ति के लिए जो जिंदगी में कुछ करना चाहता है। बेंगलुरु से तारक रामलू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अपने हौसले को ये ना बताइए कि तकलीफ कितनी बड़ी है, अपनी तकलीफ को ये बताइए कि आपका हौसला कितना बड़ा है। आगे बढ़ते हैं। अपने बच्चों के लिए सब जीते हैं, सब चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छे स्कूल में तालीम हासिल कर बड़े मकाम तक पहुंचे। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक आईएएस महिला अधिकारी ने ऐसे बच्चों को बड़े बड़े स्कूलों में एडमिशन दिलाने की मुहिम छेड़ी है जिन बच्चों का इस दुनिया में कोई नहीं। रिपोर्ट देखिए आप। एक महिला की ईमानदार कोशिश समाज का चेहरा बदल रही है। एक महिला की नेक पहल बेसहारों की किस्मत बदलने में उनकी मदद कर रही है। एक महिला अनाथ बच्चों को शिक्षा का तोहफा दे रही है। ये महान काम कर रही है लखनऊ की आईएएस महिला अधिकारी कामिनी रतन चौहान। कामिनी ने बाल गृह में रहने वाले बेसहारा बच्चों की तकदीर बदलने का बीड़ा उठाया है। मुहिम का मकसद इन बच्चों को बड़े स्कूलों में अच्छी से अच्छी तालीम दिलाना है। बेस्ट गिफ्ट जो बच्चों को या किसी को भी दे सकते हैं वो एक इस तरह का एजुकेशन है, क्योंकि बाकी अगर हम लोग जाते हैं होम्स में तो कभी हम कोई भी सुविधाएं वहाँ मुहैया करवाई, बच्चों के लिए अच्छा खाना करवाया या उनके लिए क्लोथ्स या छोटी छोटी और चीज़ें, बट वो एक दिन की एक एक्टिविटी रह जाती है। तो बच्चे चूँकि रोज़ मर्रा की एक उनकी ज़िंदगी से जुड़े हुए थे तो उन्होंने ये महसूस किया कि वो गिफ्ट तो कुछ भी गिफ्ट नहीं है, अगले दिन टूट जाता है या ख़राब हो जाता है। तो एजुकेशन इज़ द बेस्ट गिफ्ट विच कैन बी गिवन टू देम। 1997 बैच की आईएएस अधिकारी कामिनी लखनऊ के वित्त विभाग में तैनात है। कामिनी की कोशिशों का ही नतीजा है कि वो अक्टूबर 2015 से लेकर अब तक लखनऊ के ही राजकीय बाल गृह के 18 बच्चों का नामचीन स्कूलों में एडमिशन करा चुकी हैं। कामिनी कहती है कि उन्हें इसकी प्रेरणा खुद अपने बच्चों से मिली। एज अ फैमिली वी डिसाइडेड कि और सोचा भी कि एक अच्छी फील्ड है और इसमें काम करना चाहिए, तो मेरे ही बच्चों ने एक तरीके से अपने पेरेंट्स को हमें प्रेरणा दी और फिर हम लोग जुटे इसमें। बाल गृह के बच्चों को अच्छे बड़े स्कूलों में दाखिला दिलाना कामिनी के लिए इतना आसान नहीं होता। बाल गृह के बच्चों को एंट्रेंस टेस्ट के लिए तैयार करना पड़ता है। स्कूल मैनेजमेंट को बिना फीस के बच्चों को पढ़ाने के लिए मनाना भी पड़ता है, तब कहीं जाकर दाखिला होता है। लखनऊ के राजकीय बाल गृह में करीब 55 बच्चे हैं, ज्यादातर की उम्र 10 साल से कम है। कामिनी की कोशिशों से 18 बच्चे बेहतर स्कूलों में शिक्षा तक पहुँचे हैं, लिहाजा अब राजकीय बाल गृह प्रबंधन भी उत्साहित है। एक नेक कोशिश को आगे बढ़ाने के लिए कई लोग सामने आए हैं। बधाई देना चाहूँगा जी टीवी को कि जो इसको जनसाधारण के सामने ला रहे हैं, क्योंकि आम जनता में बहुत से लोग हैं जिनमें जज्बा होता है लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि हम क्या करें, कैसे करें। तो आपकी जो ये मुहिम है इससे कम से कम आम जन ये जान सकेंगे कि इन सब बच्चों के लिए वो अगर चाहें तो कुछ कर सकते हैं। एक महिला अधिकारी की नेक पहल का असर है कि राजकीय बाल गृह के अनाथ बच्चों को बेहतर तालीम मिल पा रही है, वो भी सामाजिक और संस्था के सहयोग से बिल्कुल मुफ्त। अब जरूरत है तो बस ऐसे लोगों के आगे आने की जो इस नेक मुहिम का हिस्सा बनकर बेसहारा बच्चों का सहारा बने और उन्हें शिक्षित बनाकर देश का भविष्य संवार सके। अमिता पारुल, जी मीडिया, लखनऊ। और भारत में एक बड़ी संख्या उन बच्चों की है जो या तो अनाथ हैं या फिर किसी न किसी वजह से घर से भागे हुए हैं। ऐसे बच्चों के लिए देश में 1193 बाल गृह हैं। भारत में 18 साल से कम उम्र के बच्चों की तादाद 41% है, जिसमें से 2% बच्चे अनाथ हैं। और ऐसे अनाथ बच्चों को अगर ऐसे लोगों का सहारा मिल जाए तो फिर देश का भविष्य संवर जाए।